Thank you, Sandhya, for inviting us. And good morning, everyone. Thank you so much for being here. And I hope that in next half an hour, we will discuss some points which will help you in your practice. I understand that most of the audience here are salon owners or working in salon. Is there any doctor also in our audience? All right. So yes, so I'm Dr. Apratim Goel and I'm a dermatologist by profession, but by passion I am more of a cosmetic practitioner. When I passed out my MD way back in 1999, so I'm from the last century. So, that time there was no concept of a doctor talking or even thinking about facials. So it was a very new concept, but that was all that always excited me. So yes, I run my chain of clinics. We are in Mumbai. It's called Cutis, and we are right now only in few locations in Mumbai. And yes, I don't wish to be all over. So I have found a very comfortable area where the medical science and the cosmetic practice can actually amalgamate. It's a beautiful marriage between both the sciences. So what I would like to say is that whatever we discussed today, it is actually one spectrum. I was hearing Madhuri also say the same thing earlier, and some of the questions which I felt we could answer, maybe हम इस session में वो answer कर पाएंगे. So today's topic is men. I do see very few men in the audience. Yes, thank you for your presence. And so I'm happy that I'll be chairing this session, which I think is something very important. एक टाइम था जब सैलून में ना मेन दिखते भी नहीं थे, राइट? अगर कोई लंच बॉक्स पकड़ाने भी आया ना तो वो दरवाजे पे से ही दे देते थे, बिकॉज इट वॉज मोर लाइक ए फीमेल स्पेस है. And today we have True Fit and Hill. The other day I walked into that and I was told कि वहाँ पे men treatment है, यहाँ female सिर्फ साल में एक ही दिन हम females को entertain करते हैं, वो है Women's Day. So I felt wow. So today, yes, let me introduce my panelists. I have Dr. Vinaya and I have Shweta with me. So Shweta यहाँ Lloyd से हैं. Lloyd's मुझे अभी पता चला कि Lloyd's is True Fit and Hill. Actually, the brand is. So True Fit and Hill, I think, is totally into male, and we can get a lot of insights from Shweta today. And Dr. Vinaya works with Enrich, and of course a brand which I have admired over the years, and I always wondered कि मेरे 3 सेंटर नहीं चल रहे तो इनके 100 कैसे चलते हैं पता नहीं, तो वो भी एक सीखने वाली बात होगी. So we will straight away start. शायद मेरे questions इधर आएंगे. And for further ना, I think आप दोनों भी अपने इंस्टा हैंडल्स बता दीजिएगा, so we can always connect, because अभी कोई फ़ोन पे तो नहीं कनेक्ट रहता है. I think Instagram becomes a very good. My Instagram goes by the name of my clinic, cutis.in. और अगर आप देखेंगे ना cutis.in, तो मेरी कल वाली रील जो मैंने पोस्ट की है वो करण कुंद्रा की है, and it is about this male grooming only. कि मेल्स को पड़ी ही नहीं है अपनी स्किन की, उनको अपनी गाड़ी और अपनी जिम, बस 2 चीज़ समझ आती है. So before we start, I would like all, पहली बात तो यहाँ पे कोई ऐसे हैं ऑडियंस में जो अभी भी सिर्फ ओनली फीमेल सैलून चलाते हैं या वहाँ पे काम करते हैं? ओनली फीमेल मैम, काफ़ी लोग हैं. आई थिंक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर रहे हैं, वो है मेन, है ना? तो ओके, नाउ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ऐसी क्या, मतलब मेनली जो मेल्स आते हैं, जिनके यहाँ आते हैं, वो क्या कंसर्न्स लेकर आते हैं? कोई बताएगा? आपके सैलून में मेल्स आते हैं, राइट? तो उनका चीफ प्रॉब्लम क्या होती है, बताइए ना प्लीज. एक्ने स्कार्स के लिए आते हैं. एक्ने स्कार्स इज वन कंसर्न. या सर, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम्स, राइट राइट. एनीथिंग एल्स? यस प्लीज. एक्ने, टैनिंग, पिगमेंटेशन और ऑयली स्किन के लिए आते हैं. गॉट इट. और कोई नया स्किन कंसर्न? यस. या बियर्ड शेपिंग विद द लेजर, वेरी गुड. और कुछ?
बैगी आईज, पफीनेस अराउंड द आईज, और कुछ लिप डार्कनिंग, वेरी गुड, यस। ये मैं एक बहुत ही राइजिंग कंसर्न देख रही हूँ मेन में, बिकॉज फिर उन पे टैबू लग जाता है कि आप स्मोक करते हो, और बहुत सारे मैन स्मोक नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम नहीं स्मोक करते, फिर भी लिप्स डार्क हैं, राइट। और कोई स्किन कंसर्न जो आपने अपनी प्रैक्टिस में देखा हो, घर में किसी का कंसर्न रहा हो? डबल चिन, वेरी गुड, डबल चिन। और कोई कंसर्न, इवन माय पैनलिस्ट, कोई और? So shaving related problems, absolutely. या ब्रेकआउट्स, फॉलिकुलाइटिस, वहाँ पे बम्स आ जाते हैं, इचिंग होती है, रेड हो जाता है, और अगर वाइट बियर्ड हो वो कलर करने जाए तो उसकी एलर्जी और सेंसिटिविटी, राइट। हाँ, तो बियर्ड रिलेटेड। और कुछ? बॉडी हेयर, बहुत सारे मेन जो अभी थाईलैंड भी जाते हैं, राइट, तो आई नो थाईलैंड का टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं डॉक्टर यहाँ पे। सो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि यार वहाँ तो चिकने चिकने मैन होते हैं और हमारे यहाँ इतने भालू जैसे, तो लॉट ऑफ मैन वांट टू रिमूव हेयर, है ना, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो मेल वैक्सिंग एक्सपर्ट्स हैं। और कोई कंसर्न जो हमने अब तक नहीं सोचा, फिर वी विल डाइव इनटू सॉल्यूशन स्ट्रेट अवे। कंटिन्यूसली मत करो यार ट्रिश, बीच बीच में लो बस थोड़ा सा। और हाँ जी, अंडर आर्म में पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन और स्वेटिंग भी, है ना, एक्सेस। सो अंडर आर्म पिगमेंटेशन एंड स्वेटिंग। और कुछ? हेयर, आई थिंक मेल्स के लिए ना स्किन से ज़्यादा तो उनकी सारा ऑनर तो बालों में होता तो हमारे लिए भी है, बट यहाँ हम बस मेल ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यस, अभी एक तो है कि बाल झड़ रहे हैं, एक है कि आपको मेल पैटर्न बॉल्डिंग है। अलग अलग इसलिए बिकॉज ट्रीटमेंट लाइन भी दोनों की अलग अलग है। तो हेयर रिलेटेड इश्यूज़। और कुछ? हो गया सब कुछ, मेजर कवर, आधा घंटे का तो हो गया, ठीक है, डन। सो माय पैनलिस्ट आर रेडी, श्वेता एंड विनाया। तो जैसे कि आप सबने कहा, टैनिंग, एक्ने और एक्ने स्कार्स, बॉडी हेयर, डबल चिन, शेविंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वेट लॉस के बाद ना स्किन का बैंड बच जाता है। आप अग्री करोगे, है ना। वेट लॉस इतना मुश्किल है, चाहे वो ओजम्पिक इंजेक्शन से करो या आप जिम में जाके करो या आप क्रैश डाइटिंग करो, लेकिन उसके बाद जो चेहरा ओल्ड सैगी, स्किन क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वो एक कंसर्न है। हेयर लॉस, यहाँ किसी ने राइटली पॉइंट आउट किया था, डार्क लिप्स, वो एक कंसर्न है। कभी कभी क्या होता है ना, एटलीस्ट हमारे यहाँ तो मेन को ना धक्का दिया जाता है, जाना ही है आपको, वहाँ जाओ, तो उनका कोई अपना कंसर्न नहीं होता, वो कहते हैं कुछ भी करो, मेरी तो वाइफ ने मुझे भेजा है ज़बरदस्ती। और हाँ, एक है ग्लो का चैप्टर, आई डोंट नो वो खोलना चाहिए नहीं, वो एक पूरा वो नो पेंडोरास बॉक्स है। आजकल सबको मैन हो या वुमेन ग्लो चाहिए, है ना, तो एक दे कीप आस्किंग फॉर ग्लो ना बिफोर। सो अब ना एक बात तो हम मानेंगे कि स्टिग्मा, मतलब मेल्स, अभी भी आई थिंक अर्जुन से बात हो रही थी, इज लाइक ना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, राइट। तो ये एक जनरल एटीट्यूड है मेन का कि जस्ट यू नो पुट इट डाउन। सो इट हैज़ बीन अ स्टिग्मा, बट आई मस्ट से कि अभी सेल्फ केयर पे हम मूव कर रहे हैं। देर इज़ अ लॉट ऑफ अवेयरनेस विथ सोशल मीडिया, है ना, एंड डेटिंग एप्स। यस मैम। Stretch marks is also a problem and looseness of the skin, absolutely. Then अभी बहुत सारे Gen Z millennials हैं जो इस बात को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ हमें भी फीमेल्स की तरह अच्छा दिखना है। अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है एंड ऑफ कोर्स यू नो विद ट्रूफिट एंड हिल ऑन अ पैनल वी हैव कस्टमाइजेशंस। अब मैं ये पूछना चाहूँगी विनय आपसे पहले कि व्हाट इज़ द शिफ्ट इन मेल ग्रूमिंग जो आपको दिख रहा है ओवर लास्ट लेट्स से 2 decades? मेरे पास माइक नहीं है। Do you want to sit here? थैंक यू। हाँ, सो व्हाट इज़ द यू आर सीइंग मेल ग्रूमिंग में डिफरेंस? In manicures, pedicures especially, I guess the numbers are as same as the females. Is so, it? Oh yes. Oh yes. Maybe more, but I could say 50-50. So 50% of males doing manicure pedicure versus 50% of females doing manicure pedicures. आप सब लोग अग्री करते हो कि मेल्स भी इक्वल
मैनिक्योर पेडिक्योर मेरा ब्रदर नहीं करता, मुझे उसको बोलना पड़ेगा. एंड एक्चुअली द फीट स्मेल ना, जूते पहन के रखो पूरे दिन नहीं. Of course, and also with facials, I'm feeling now that the men are opting for facials and things like that for specific skin concerns. ओके, तो फेशियल्स भी ज़्यादा हो रहे हैं, Facials भी ज़्यादा हो रहे पेडिक्योर हैं. भी Not ज़्यादा. as much as how much the females do, Okay. but definitely the numbers are going high. ओके, So I can see these two aspects wherein, and also body waxing. अच्छा. That's पेनफुल नहीं one होता thing. वो, क्योंकि मेन का पेन थ्रेशोल्ड तो बहुत कम होता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है. But now that we have come up with good waxing products, like we have cartridge waxes, we have waxes which help them to be very personalized, hygienic, and the liposoluble waxes being very good with the ingrowth removal and तो वो stuff like करवा that. लेते हैं. तो वो करवा तो लेते full हैं body basically. करवाते हैं क्या? Full body, full body. Underarms, Underarms, groins, chest, back, groin? legs and head. No, we don't opt for the groin area. सो ये भी एक कंसर्न रहता है हमारे यहाँ भी. जब लेज़र के लिए आते हैं ना, तो हमेशा ये होता था कि तो जेनाइटल पार्ट्स की लेज़र कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे यहाँ यूजली फीमेल्स थेरेपिस्ट होते हैं. सो व्हाट वी डिड इज दैट वी हैव अ मेल हु डज शेविंग एंड लेज़र फॉर द प्राइवेट पार्ट्स फॉर मेन, बिकॉज अब एक ही तो हेड नहीं रह सकते ना बॉडी में, और वैसे भी लेज़र इज. So at Enrich, we do not allow the female therapist to do a male service. Hence, Oh. we train our the people who do manicure pedicure for them to do the waxing service for men. So males do it for males. ओके. So we don't allow the females to do services for the males. और इसके पीछे कारण क्या है विनया, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लेटली मेल्स बढ़ रहे हैं? इज इट अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों की इसके, जैसे आपने कहा कि थाईलैंड में जा रहे हैं लोग, देख रहे हैं, राइट? सो डेफिनेटली लोगों को लगता है अरे मैं भी ऐसे दिखना चाहिए, यू नो. सो दैट्स हाउ पीपल आर गेटिंग मोर इन्वॉल्वड इन इट एंड एंगेज्ड, इज व्हाट आई फील. और अगर खर्चे की बात करें तो क्या मेल ज़्यादा कंजूस है या कम कंजूस है पैसा खर्च करने में? नहीं, मुझे लगता है कि खर्चा करते हैं. करते हैं ना, है ना? करते हैं. सब एग्री कर रहे हैं. इजीली आई थिंक दे पे. हमने तो लॉयल्टी पैकेज स्टार्ट ही मेल्स को देख के किया था. इनफैक्ट मैं कहूँ मुझे लगता है कि हमारी जो ब्यूटी टेक्नीशियंस हैं उन्हें अगर फेशियल बेचना होगा कोई एडवांस वाला, तो आई थिंक सो अ मेल इज मच बेटर देन अ फीमेल, बिकॉज अ फीमेल हैज 10,000 क्वेश्चंस अराउंड इट एंड अ मेल इज लाइक ओके ये करवाना है करवा लो, यू नो. सो दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड ऑल्सो विद एन एड ऑन सर्विस लाइक अ एड ऑन मास्क और समथिंग आफ्टर अ फेशियल. They easily, like, they don't even ask you how much it's going to cost you probably many times, you know. So I feel that it's really nice, and Yes. the way men are taking it ahead, it's और really very डिस्काउंट good. और बार्गेनिंग भी ज़्यादा नहीं करते. नहीं, जरा भी नहीं, जरा भी नहीं. तो यहाँ पे जो ऑडियंस अभी तक मेल नहीं कर रहे ना, या तो आप एक सेक्शन बना दो या एक दूसरा सैलून स्टार्ट कर लो. जो हमारे एक्सपर्ट सेकंड वाले जो एक्सपर्ट हैं, इनका बिजनेस सिर्फ मेल ही है. तो श्वेता, आप क्या बोलते हो अगर ये क्वेश्चन आपके लिए सेम हो? Hello? Yeah. So what I have noticed, there is a noticeable shift, okay, in men's grooming especially. What I have observed. हिंदी. Hindi, yeah. So मातृभाषा. एक noticeable shift है men's grooming में in this last 5 years. अच्छा. मेंस ग्रूमिंग इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी एक्सपांड हो रही है और काफ़ी रैपिडली हो रही है. मेंस सेंट्रिक प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल. तो जो लेबलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट्स का, दे आर वेरी आई कैचिंग, एंड मेंस आर मूविंग बियॉन्ड जस्ट शेविंग एंड हेयर कट, व्हाट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड. ओके, सो अभी उनके पास खुद के स्किन केयर रूटीन के लिए दे हैव देयर क्लेंजर्स, स्क्रब्स, सीरम्स, व्हाट वी सी. तो कहीं ना कहीं हमें कॉम्प्लेक्स आ रहा है अभी. ओके, rather than females, men has lot of products in their dressing unit. Okay? श्वेता, आप सबको एक एक वाउचर दे दो ना. सब अपने मेल्स को भेजेंगे आपके वहाँ पे, बिकॉज इट इज अमेजिंग. वो जो स्मेल मुझे अभी भी जो याद है ना आपके सैलून की, टू गुड. Oh, thank you. या रियली. So पहले जो men थे, okay, there was a stigma what I feel, and they have overcome it कि अभी men's भी grooming कर सकते हैं. So they have overcome it कहीं ना कहीं. Social media has played a major role. Influencers, celebrities, especially cricketers, okay, वो भी कहीं ना कहीं major role play कर रहे हैं कि men should incline towards the skin care. Okay, पर मैं कहूँगी social media के पहले कहीं ना कहीं we ladies as a mother,
डॉटर Sisters. सिस्टर, राइट? हमने भी एनकरेज किया है मेंस ग्रूमिंग के लिए. जब हम फेस मास्क लगाते थे तो हमने भी कहीं ना कहीं हमारे भाई के फेस पे, हस्बैंड के फेस पे लगाया है. लेकिन वो कहते कहावत है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, या लाइक यू नो Goldsmith only peers that so influencers are playing major role compared to us. So एक वो है. Men's are openly asking, seeking help for their skin concerns, issues like oily skin. So again skin issues जैसे हम describe कर रहे थे, it vary करता है according to their lifestyle depends and age group के ऊपर भी. जो youngsters हैं, teenagers हैं, they are looking specially for oily related, acne related concerns के लिए. और जैसे एज ग्रुप ऑफ कोर्स व्हेन दे गेट मैच्योर दे आर लुकिंग फॉर ड्राइनेस, एंटी एजिंग इज आल्सो पॉपुलर नाउअडेज, राइट? और श्वेता, ट्रू फिट एंड हिल के प्रोडक्ट्स दे स्मेल ऑसम. बट आप देखेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स ना फ्रेग्रेंस के अगेंस्ट होते हैं. मैं नहीं हूँ, आई पिक. ऐसा लग रहा है कि मेरा बाहर वालों से झगड़ा हो रहा है कि मेरी आवाज़ भी है उनकी आवाज़. सो ऐसा कभी आपको हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस इन योर प्रोडक्ट्स कभी भी कुछ प्रॉब्लम आई? Okay. So I'll tell you fragrances, aromatherapy, if you have heard of, it's a therapy. So the थेरेपी. aromatherapy, okay, wherein the essential oils are used, right? So they are very therapeutic. उनको value है, they impacts, they works on a mood. जैसे कॉफ़ी शॉप से अगर हम गुजर रहे हैं और कॉफ़ी की एक खुशबू आ रही है तो कहीं ना कहीं हमारा मूड भी अपलिफ्ट होता है, right? Same with the fragrances, generally if they are very used essential oils के है तो they are not going to irritate your skin at all, but they will benefit you psychologically, okay? Somewhere it will uplift, soothe your mood, and of course physiologically it's going to, you know, brain is going to rest, they will go into a calm deep sleep. So we have never found that any product has irritated. Again, it depends on what you choose, the quality, the ingredients, it depends completely on that. टोटली. सो आपकी तो ब्रांड ही मेन से स्टार्ट हुई है. So pure men centric brand है, but of course luxury services हम offer करते हैं. So Absolutely. more of shaving, haircut, and again what as Dr. Vinaya said कि shaving और haircut के अलावा अभी जो footfall ज़्यादा हम देख रहे हैं, it's for manicure and pedicure. So they are making sure they're addressing all the aspects of grooming for each and every body part, like from head to toe, to make sure, to ensure that, you know, they maintain that polished look. आप अपने आप को बार्बर बोलते हो ना? Yes, barber shop. बार्बर शॉप. हाँ, ग्लोरीफाइड Yes, a लग्जरी traditional barber shop, but at the same time with the luxury. सो मेरे क्वेश्चन है कि जब आप मैनिक्योर पेडिक्योर करते हो तो नेल पेंट तो नहीं लगाते ना? नहीं, again I'll say it's a myth now कि gents nail paint नहीं लगा सकते. ये भी मिथ है. Yes, yes, yes. So तो कौन सा कलर कैसे लगाते हो? ट्रांसपेरेंट जो होता है, men go for that, black as well. Yes. yeah. Yes. Teenagers they prefer black, okay? And even you know now what has happened, grooming जो है एक social competitor जैसा है, okay? So again social competition है, grooming they are seeing as an essence for presentation and confidence at workplace. So they are embarrassing their nails, okay? The shape, वो shape के बारे में भी particular है. Oh, really? Not limited to straight and round, but that square वाला shape, the almond. Okay, so they have a knowledge कि shapes कौन-कौन से होते हैं, and depends on the class what you are catering to. So also they prefer the nail coat. Again, nail coats not just transparent. They want to know ये base coat है या top coat है. Really? Yes, they are so much aware. So you Wow. just can't fool men, not at all. सी संध्या ने बहुत अच्छा वो किया है ये टॉपिक डाल के, लेकिन एक्चुअली दैट मोटिवेट्स अस आल्सो. Yes, ट्रू फिट एंड इज ऑलवेज बीन अ वेरी मोटिवेशन के ये काइंड ऑफ एक निग्लेक्टेड सेक्टर है जो हमें लगता है ना, सैलून और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, बट इट इज समथिंग लवली. ओह यस. Eyebrow shaping is something that they are, you know, so much concerned about. So I feel that we are at par with, I mean, they are at par with all the women services that we do. So there's eyebrow shaping with men, yeah. बस डिफरेंस ये हम लोग उसको लेजर करते हैं तो व्हाट वी टेल आवर पेशेंट, बिकॉज लेजर परमानेंट होता है, तो अब फिर ऐसा नहीं हो कि आप बोलोगे ना मुझे पसंद नहीं आया. सो आई टेल देम कि आप पहले सैलून जाओ, पहले थ्रेडिंग करो, पहले 3-4 महीने तक रखो, उसको पतला कर लो, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ तब हम लेजर करेंगे उसके लिए. राइट, सो दैट वाज ग्रेट.
देख लिए हाँ दिस इज डन डन नहीं, बट इट्स नॉट मूविंग। ओके, ये तो हमने बता दिया। आप बताइए विनय और श्वेता कि ऐसा कुछ और है क्या जिसके लिए मेल आते हैं, जो हमने अभी ऑडियंस के साथ डिस्कस किया उसके अलावा? इज देयर एनीथिंग एल्स? I see young boys with acne, blackheads, whiteheads. Discuss So किया। cleanups के लिए काफ़ी उस जनरेशन के जो बच्चे हैं cleanups के लिए हमारे पास काफ़ी आते हैं. कोई गोरा होने के लिए नहीं आता है? गोरा इस पर्टिकुलरली नहीं, टैनिंग के लिए अक्सर लोग आते हैं. Okay. आई वुड से गोरापन का अब तक सरताज हम विमेन को ही दे देते हैं. सो आई फील टैनिंग इज वन प्रॉब्लम, एक्ने, बट एट सैलून लेवल हम सिर्फ ग्रेड 1, ग्रेड 2 ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स तक ही सीमित रहते हैं. बाकी उसके बाद हम डर्मैट के पास भेज देते हैं. मैं एड्रेस दे दूंगी एंड में, हाँ, सबके लिए. और कुछ नया श्वेता अदर देन जो हमने डिस्कस किया? नया नहीं है. These are the नहीं. common issues what I feel and they are नहीं. bothering now to men's, right? That's the reason they are seeking help. ओके, अभी आप जल्दी जल्दी बता दो कि ऐसा आप कोई सिग्नेचर ट्रीटमेंट जो सिर्फ मेल के लिए हो, ऐसा कुछ करते हो आप दोनों अपने? Yeah. So हमारे पास signature services है, okay, but not for skin I can say. Of course for skin I'm very sorry bad. So it's a beard shaving. हमारे पास एक royal shave है. रॉयल? Yeah. So shaving again it's a big part which we do on skin, right? So skin जो face के ऊपर जो larger area cover होता है वो beard से ही होता है. So we make sure कि जो beard के लिए जो products use करें before shaving, pre-shaving या shaving के time that should be according to the skin type. So we choose the product according to skin type, oily, dry, normal and also sensitive और आप also. फिर घर के लिए भी दे देते हो? Yes, home products? care ability. Because But we वो घर make पे भी तो sure, shave yes, करेंगे. the हाँ. shaving creams, what you choose, okay, it should balance the natural oil or moisture of the skin. Because it's an everyday job. So जब आप shaving करते हो, what happens, the natural layer, okay, धीरे धीरे disturb हो जाता है, which Correct. irritates the skin, leads to dryness and also a sensitivity at last. So Correct. we make sure कि we give, of course we have a service, but that's how we make it Royal shave. signature, yeah. आप क्या कुछ स्पेशल मेन पे ध्यान? Men, after shaving, we have not yet executed the service, but we are planning to do something called as a couch facial. Wherein you do not need to go to a beauty cabin to get it done, but वहीं बैठे बैठे जहाँ पे आपने बाल भी कटवा लिए हैं, शेव भी कर लिया है, और उसके बाद एक छोटा सा फेशियल रिचुअल भी होगा आपके साथ, जो आपके like a maintenance facial kind of, which is not particularly for a skin concern, but just like a cleansing Relaxation. and a little bit of exfoliation, थोड़ा सा massage, और उसके बाद एक pack. So it's called as a Lovely. couch facial, which will be done on the hair station itself. वाओ, आपकी भी तो कुछ ऐसी ही हैं, तभी आप हंस रहे हो? So we are into luxury grooming. We follow some traditional practices, but at the same time, of course, fusion भी है. So traditional practice करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे chairs पे ही facials होते हैं. Yes. But while after facial, we give them a relaxing, nice hand and shoulder massage. तो वो एक pampering भी करते हैं हम. Thank you. I'll drop that SOP for sure. It's patented. अच्छा, ज़्यादातर मैंने जो देखा है अपने क्लिनिक में कि मेल्स ना थोड़े हिचकिचाते हैं, उनमें थोड़ी झिझक, दे फील शाय एकदम से. आप क्या नहीं होता होगा? नहीं आप क्या होता होगा? Yes, yes, yes. है ना? तो आप उनको कंफर्टेबल कैसे करते हो कि किसी मेल को भेज दो करने के लिए कि मतलब इनिशियली So फर्स्ट टाइम? initially that's what we do, and hence we have kept most of the male services apart from a facial restricted to a male technician only, which helps them खुल के बात करने के लिए और उनके needs बता के right service को करने के लिए. So that's how male technicians are kept specifically for that. That is, yes, please. मेरा क्वेश्चन है मेंस के लिए जो बात हो रहा है कि हम क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि पहले फेशियल या क्लीनअप करना है, तो हम शेविंग करते हैं ब्लेड से, तो पहले ब्लेड करना है या फेशियल करना है पहले? He is asking कि पहले shaving करना है facial. अगर दोनों सर्विसेज करनी है तो पहले क्या करना पहले चाहिए? शेव करते हैं, उसके बाद फेशियल तो करते मैडम हैं. किसी को ऐसा होता है जो ब्लेड करते हैं ना, तो कुछ को इचिंग बर्निंग होता है और वो हो जाता है
खोल अगर ले। कुछ कट आ गया होगा तो प्रोबेबली वी मे नॉट, नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट। कुछ बड़ा ही कट आया हो, बट इन केस छोटा सा कट है तो हम फेशियल कर देते हैं कोई उसमें। दिक्कत- सो आई फील इन दिस केस ओके आप मैम, कौन सा हिंदी। फेशियल कर रहे हैं Please, उसके ऊपर हिंदी। डिपेंड है, राइट? Okay. सो शेविंग के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगी सूदिंग फेशियल्स, कामिंग फेशियल्स, वो आप कर सकते हैं। और अगर फेशियल नहीं करना है तो जेल बेस्ड मास्क, जेल जो ठंडा ठंडा फ्रिज में से आप निकाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा एस्थेटिक टर्न देना है तो ब्यूटी ग्लोब्स अवेलेबल है। दिस इज हाउ यू कैन प्रीमियमाइज योर सर्विस और एक एस्थेटिक टच दे सकते हैं। सो अवॉइड डूइंग फेशियल्स बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इंग्रेडिएंट्स दे हैव यूज्ड। एब्सोल्युटली। थैंक यू। और स्पेशली हमारे क्लिनिक में जब हम ट्रीटमेंट्स करते हैं तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि अगर आप परमानेंट बियर्ड है तो हम बियर्ड छोड़ देते हैं। तो हमारा जो कार्बन फेशियल है वी कॉल इट एडम फेशियल एक्चुअली, और अदरवाइज वी टेल देम कि आप घर से एक दिन पहले शेव करके आइए, सो दैट एक्यूट एक्सफोलिएशन पे बर्निंग हो सकती है। So, ma'am, I like to add this. Nowadays, beard facials are very, very popular. Yes. Beard facials काफी popular है, which involves cleansing, exfoliation, steam, massage, everything. So, अगर उनको facial ही करना है, offer them a beard facial. बिल्कुल राइट। सो मैंने कुछ पॉइंट्स रखे थे, शैल आई रीड इट आउट कि हाउ कैन सैलॉन्स इंक्रीज मेन क्लाइंटेल, बिकॉज अभी भी 25% है यहाँ पे जो मेन को एंटरटेन ही नहीं करते हैं। तो प्लीज गिव अस सम टिप्स। व्हाट आई हैव पुट डाउन इज डेडिकेटेड ट्रीटमेंट, पूरा मेन्यू। तो जब मेल्स आए तो उनके हाथ में डिफरेंट मेन्यू जाएगा कंपेयर टू फीमेल्स। देन एम्बियंस, I think female liking for fragrances is more floral, whereas for male it is different, more woody, oceanic, musky. Yeah, Then citrus, male citric. focus therapist जो विनय ने हमें बताया, customized beard facials जो आपने बताया श्वेता, lunch time because उनको सब जल्दी जल्दी चाहिए। Yes, yes. लंच टाइम एक्सप्रेस ट्रीटमेंट्स आधा घंटे में कंप्लीट, 2 घंटे मत लगाओ। मेन स्किन केयर रिटेल कॉर्नर जो श्वेता ने बताया, और लॉयल्टी प्रोग्राम्स। इसके अलावा कुछ फास्ट, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। उसके और अलावा यमराज आ गए हैं। I feel see at least evolution यहाँ हम देख रहे हैं and we want it to grow. So services offer कर रहे हैं, लोग ले रहे हैं, but I feel आप उनको कुछ ऐसा product दो जो multi functional हो, at the same time formulation should be non greasy, non sticky, quickest service जैसे मैम ने कहा, not necessary कि facial 5-6 steps का ही होना चाहिए, give them 3 step 4 step facial, try to limit it to 30 minutes, ऐसे कुछ आप offer कर सकते हैं। And if you feel like clients are not getting converted, offer them a first facial as a free on trial basis. It is like, you know, हम जैसे एक बीज डालते हैं और पौधा आता है। So अगर 10 क्लाइंट को मैं ऑफर कर रही हूँ फ्री फर्स्ट फेशियल, वही तो I'm बोल रही हूँ, sure सबको 5-6 एक-एक जन voucher वापस बांट जरूर दो। आएंगे। सबको वाउचर But बांट दो business श्वेता। head is sitting here, maybe you people can Hi. contact me for voucher. So maybe, you know, if everybody is given a voucher, they can experience. So yes, मेरा माइक ऑफ कर दिया गया है। So thank you so much. आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल प्लीज दोनों बता दो फटाफट, ग्रुप पिक्चर से पहले। इंस्टाग्राम हैंडल श्वेता। इंस्टाग्राम हैंडल मैं truefitandheal.in पर ही Truefit लेना and Heal. चाहूँगी। आपका? Yes. And So Rich? we are very much loyal towards our companies. But it was a pleasure to be with you all professionals who are shaping the future of this grooming and wellness Absolutely. industry. Okay, Thank you so much. And thank you audience. It was such a lovely interactive session.